So welcome to the students for the another lecture of the turbulent flow through the pipe. Now today we will discuss about the friction loss in the pipe flow. Understand? So when the liquid is flowing, just first try to understand it. When the liquid is flowing through the pipe, what happens there? The velocity adjacent to the pipe ball that is equal to 0. तो जो आपकी velocity होगी, this you know, velocity at the adjacent to the pipe ball, just you know that the velocity जो पाइप की बॉल के साथ जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? 0 or nearly 0. You understand? So as we keep on increasing the distance from the pipe ball, the velocity keep on increasing. जैसे हम, this is your pipe, ये आपकी पाइप है. You understand? So the liquid is flowing here. Understand that? ये आपका लिक्विड है जो कि इसमें पाइप में फ्लो कर रहा है. दैट इज अ टर्बुलेंट फ्लो हियर. सो ही सेज दैट द वेलोसिटी एट द एडजेसेंट टू द पाइप वॉल और एट द पाइप वॉल, यू कैन से वेलोसिटी इज 0 हियर एंड दिस इज योर सेंटर लाइन. एंड एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप वॉल टू द सेंटर, द वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग. दैट यू नो इट. वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. और एट द सेंटर यू नो दैट द वेलोसिटी इज मैक्सिमम. और सेंटर में आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी फ्लो की? दैट इज द मैक्सिमम. सो फ्रॉम हियर यू हैव सीन दैट क्या होगा? देयर इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि वेलोसिटी जहाँ पे 0 थी और वेलोसिटी जैसे जैसे जो डिस्टेंस आपका इंक्रीज होता जाएगा टूवर्ड्स द सेंटर, द वेलोसिटी कीप एन इंक्रीजिंग. There is the velocity gradient, and you can say there is shear stress will also develop in the liquid. Velocity gradient and shear stress will develop in the liquid due to the viscosity. Viscosity से हमें क्या मिलेगा? एक तो हमारा pressure gradient develop होगा और you can say that velocity gradient develop होगा, और दूसरा हमारा क्या है, क्या होगा वहाँ पे? shear stress develop होगा, प्रोड्यूस होगा. सो ड्यू टू द viscous action, ये जो आपका फ्लो जो है, द फ्लो विच इज इन द टर्बुलेंट फ्लो विच इज इन द पाइप, so due to the viscous action what happens that there is the friction loss, or you can say there is the energy loss. You understand that? वो जो आपका फ्रिक्शन लॉस और एनर्जी लॉस है उसके बारे में हम आज इक्वेशंस जो हैं, दैट इक्वेशंस वी विल ड्राइव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, एंड जो आपका जो जैसे जहाँ पे पॉइंट दूसरा लिख ले, वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग towards the center of the pipe. जैसे जैसे हम बॉल से सेंटर की तरफ जाते जाएंगे, वेलोसिटी क्या होगी? towards the center of a pipe. You understand? So there is a velocity gradient. velocity gradient होगा तो क्या होगा? viscosity develop होगी, राइट? viscous action होगा, शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, एंड उससे हमारा क्या होगा? द लिक्विड विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, देर इज द एनर्जी लॉस, देर इज द फ्रिक्शन लॉस, यू कैन से. एंड फ्रिक्शन लॉस दिस इज डिनोटेड बाई HF. ये हमारा, दिस इज द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द फ्लो टूवर्ड्स द पाइप. यू अंडरस्टैंड? सो आज जो मेरा टॉपिक है, and before discussing this friction loss, William Ford was a scientist.
he has given some laws regarding to the frictional fluid friction, or you can say fluid friction के बारे में विलियम फोरडे has given some laws. तो laws क्या थे? विलियम फोरडे ने जो laws दिए थे आपके, विलियम फोरडेज, इसको मिटा दीजिए। So, William Fordyce, right, gave some law of the fluid friction. So, laws of fluid friction. So, fluid friction के some laws has been given by the विलियम फोरडेस। फर्स्ट लॉ क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फ्लूइड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज फॉर द टर्बुलेंट फ्लो। ये लिख लीजिए, ये आपका टर्बुलेंट फ्लो के लिए था। यू अंडरस्टैंड? दीज लॉज आर गिवन फॉर द टर्बुलेंट फ्लो। यू अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट लॉ था फ्रिक्शनल resistance is directly proportional to b raised to power n. You understand? Velocity raised to power n, जो n की वैल्यू है, that varies from 1.5 maximum कितना? 2. You understand? First, this he has given. Second law, frictional resistance in the fluid flow, that is directly proportional to the density of liquid or fluid जो भी flow कर रहा है। You understand? Third, frictional resistance is directly proportional to the area of surface contact. So third, he has given frictional resistance directly proportional किसके होगा? एरिया, कितना एरिया जो है फ्लूइड के साथ कांटेक्ट करेगा। सरफेस, जैसे इस सरफेस से आपका फ्लूइड पास कर रहा है, सो वी हैव टू सी कि कितना एरिया जो पाइप का है फ्लूइड के साथ क्या करेगा? कांटेक्ट करेगा। एरिया ऑफ सरफेस कांटेक्ट, इसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया ऑफ सरफेस कांटेक्ट। Fourth, he has given that frictional resistance is independent on the pressure, independent of pressure. Frictional resistance जो होगा प्रेशर का, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। Frictional resistance is independent of pressure, right? And the fifth law he has given that frictional resistance is independent of the nature of the surface contact. कि इसमें क्या नेचर है इसका, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, किस मटेरियल का ये जो पाइप है या जहाँ पे आपका फ्लो हो रहा है वो किस मटेरियल का है, that doesn't affect the frictional resistance. You understand? So frictional resistance
frictional resistance is independent of nature of सरफेस कंटेक्ट, नेचर जहाँ एरिया ऑफ सरफेस कंटेक्ट, ठीक है, सरफेस कंटेक्ट. सो these laws are given by the William Fordyce for the turbulent flow. कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है आपका, फ्लूइड फ्रिक्शन के रिगार्डिंग ही हैज गिवन सम लॉज कि जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे, कौन से पैरामीटर्स उसको अफेक्ट नहीं करेंगे. तो दैट इज गिवन इन द शेप ऑफ लॉज. सो फर्स्ट ही हैज गिवन दैट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दैट इज प्रोपोर्शनल टू v raised to power n, that is velocity raised to power n. N means power that varies from 1.5 to 2, maximum b square, you can say maximum b square. Second is frictional resistance directly proportional to the density of the fluid. फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, कम है, उसके ऊपर भी जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो डिपेंड करेगा. अगर फ्लूइड डेंसिटी कम है तो आपका जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा. और अगर आपकी फ्लूइड डेंसिटी ज़्यादा है तो आपका जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. यू अंडरस्टैंड. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सरफेस कांटेक्ट. व्हाट डज इट मीन कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दैट डिपेंड्स कि आपका जो फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप और डक्ट और समवेयर एल्स, दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द surface area is in contact with that fluid. You understand? If the area of contact is more, you can say frictional resistance is more. And if the area of contact is less, the frictional resistance is less. You understand? So the other two laws they don't affect the frictional resistance. फर्स्ट ये था कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आपका प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, प्रेशर का इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा. यू अंडरस्टैंड दैट कि प्रेशर आपका रिड्यूस करता है या प्रेशर आपका इंक्रीज करता है, उससे कोई इसका अफेक्ट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का नहीं होगा. यू अंडरस्टैंड. एंड द अदर वन इज दैट दिस आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सरफेस कांटेक्ट. ये इसके ऊपर भी इंडिपेंडेंट होगा कि आपका नेचर ऑफ द जो सरफेस कांटेक्ट है उसका नेचर क्या है. यू अंडरस्टैंड. वो किस मटेरियल से बना है, उसकी क्या क्वालिटी है, तो उसके ऊपर भी ये इंडिपेंडेंट होगा. यू अंडरस्टैंड. सो दीज आर सम लॉज जो कि हम जो मेन आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डार्सी-वेईसबाक इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, एक्सप्रेशंस उसका होगा, और उसके बाद हम चेज़िस इक्वेशन ड्राइव करेंगे. इन दोनों के केस में वी विल फाइंड द फ्रिक्शन लॉस की वैल्यू क्या होगी, और चेज़िस इक्वेशन से हम जो एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी, उसका भी हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे. यू अंडरस्टैंड. तो आज जो मेरा मेन टॉपिक है, फर्स्ट वी विल ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन टू फाइंड द फ्रिक्शन लॉस. एज फ्रिक्शन लॉस इज डिनोटेड बाय HF, तो हमें HF की वैल्यू इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो वी हैव टू कैलकुलेट. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट friction loss, whether it is the laminar flow, whether it is the turbulent flow, in both the cases you will get the same equation of the friction loss, क्योंकि डार्सी-वेईसबाक equations we have derived in the laminar flow also, and here also we are driving, but we are driving this for a turbulent flow. But
ultimately at the end you will find the relation is same. You understand? तो रिलेशन इसका सेम होगा क्योंकि फ्रिक्शन लॉस जो है दोनों के केसेस में, चाहे वो टर्बुलेंट फ्लो है चाहे वो लैमिनार फ्लो है, फ्रिक्शन लॉस आपका सेम होगा. तो फर्स्ट हम वी विल ड्राइव द इक्वेशन फॉर द डार्सी-विस्बैक इक्वेशन, और वहां से उसी इक्वेशन को फर्दर हम कंटिन्यू करके चेज़िस इक्वेशन ड्राइव करेंगे. सो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस. इसका हम डेरिवेशन करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे. यू अंडरस्टैंड? So can say that फ्रिक्शन लॉस इन पाइप, इधर ऊपर लिख लीजिए आप, कैप्शन हम डाल देंगे डार्सी-विस्बैक equation, and from here also, and Chassis. Chassis equation. You understand? So डार्सी-विस्बैक इक्वेशन, और डार्सी-विस्बैक इक्वेशन से हमारी चेज़िस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे. यू अंडरस्टैंड? तो एक ड्रा कर लीजिए. दिस इज योर पाइप. You understand? So this is your center line of the pipe, right? So consider the uniform horizontal pipe. आप अब क्या करें कि यूनिफॉर्म पाइप कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप, राइट? यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप. ये चीज़ आपको, ये जो मैंने लिखा है इसका आगे आपको इफेक्ट पता चलेगा. यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप एंड वी आर टेकिंग हियर द स्टेडी फ्लो. हम कौन सा फ्लो ले रहे हैं यहाँ पे? दैट इज स्टेडी फ्लो. यू अंडरस्टैंड? सो नो वी आर ड्राइविंग द एक्सप्रेशन फॉर द डार्सी-विस्बैक इक्वेशन. तो एक्सप्रेशन आपका just understand. Look here. So you can say ये आपका flow है. This is the uniform horizontal pipe and flow is turbulent flow through the pipe here. You understand? Consider this is your section 1-1 and this is your section 2. You understand? So let us write down some parameters for the section 1-1 and section 2-2. आप कुछ पैरामीटर्स इसके लाइव लिखिए. तो आप कह सकते हैं सपोज करो एट ये वाला जहाँ पे प्रेशर क्या है P1 एंड जहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट इज P2, राइट? सो P1 इज द
प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, P1 आपका क्या है, प्रेशर है, तो जहां पे कुछ पैरामीटर लिख लेते हैं हम, लेट P1 क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी राइट एट सेक्शन 1 अंडरस्टैंड। इसी तरीके से B1 क्या है, वेलोसिटी एट सेक्शन 1 यू अंडरस्टैंड। Z1 ले लीजिए, Z1 क्या है, डेटम हेड एट सेक्शन 1 यू अंडरस्टैंड। Z1 datum at section 1 L ले लीजिए, L क्या है, लेंथ ऑफ पाइप, D, small d is the diameter of the pipe, small d, dia of pipe, you understand। इसी तरीके से ले लो आप। So at section 2 at section 2 सेम पैरामीटर्स होंगे, सिर्फ P2 आपका प्रेशर होगा, इंटेंसिटी एट सेक्शन P2, B2 आपकी वेलोसिटी होगी ऑफ द फ्लूइड, Z2 डेटम हेड है राइट। So these are some parameters which we have taken here। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है HF, इधर लिख लीजिए, HF हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। HF क्या होगा, मैंने अब जैसे आपको बताया कि when the fluid is flowing through the pipe here, so what happens that due to the velocity gradient and shear stress will also develop here. So due to the viscosity, what happens there? There is the friction loss, there is the head loss in the flow. यही तो हमने आज find out करना है। तो HF, you can say this is the friction loss or the head loss, which is given here. So ये चीजें आपने नोट कर ली। Note on this, what we have taken, we have taken the uniform horizontal pipe। तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसका जो डायामीटर है that will same throughout the pipe। तो इसका मतलब है जो आपका D1 is equal to D2 is equal to D, डायामीटर is same। और अगर आपकी पाइप यूनिफॉर्म है, so it means that your velocity that is also equal to same, that is V1 is equal to B2 is equal to B, velocity is same। and if the pipe horizontal है, if the pipe is horizontal, तो जो आपका डेटम हेड होगा, सपोज करो कोई भी डेटम हेड है, ये जहां पे आपका ग्राउंड लेवल है, जहां से जो भी डेटम हेड होगा Z1 का और Z2 का डेटम हेड जो होगा वो क्या होगा, वो भी सेम होगा। सो इट मीन्स दैट Z1 इज इक्वल टू Z2। तभी मैंने आपको कहा था कि ये जो मैंने लिखा है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप, इसको आप अंडरलाइन करें, ध्यान से सुने। व्हाई आई हैव रिटन हियर, बिकॉज यूनिफॉर्म मीन्स द डायमीटर ऑफ द पाइप इज सेम थ्रू आउट, एंड हॉरिजॉन्टल व्हेन द पाइप इज हॉरिजॉन्टल, सो उसका जो डेटम हेड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और जब आपका डायमीटर सेम होगा थ्रू आउट द पाइप, देन द वेलोसिटी
at any section you can say, whether it is the section 1 1 2 2 3 3, any section of the pipe, the velocity is same. You understand? So ये चीजें आपने नोट कर ली. अब हम इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप जो याद रखें आप, इसमें क्या करेंगे हम. फर्स्ट स्टेप, अप्लाई Bernoulli equation between section 1 1 and 2. बर्नौलीज इक्वेशन आप अप्लाई कर दें सेक्शन 1 1 और 2 2 के. तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है? यू नो दैट प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड plus datum head at section 1 1, this is equal to pressure head plus datum head plus kinetic head at section 2 2 plus friction losses. You understand? Plus friction losses or head loss. तो ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन था. तो ये क्या आएगा? एट 1 1 के ऊपर ले लें आप. P1 upon rho g plus what is at section 1 1 के ऊपर काइनेटिक हेड क्या होगा? दैट इज V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1. दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 1. दिस इज इक्वल टू P2 अपॉन rho g प्लस दिस इज प्रेशर हेड. वेलोसिटी में ले रहा हूँ जहाँ पे V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 प्लस जहाँ पे होगा फ्रिक्शन लॉस होगा ना, जहाँ पे जैसे जैसे फ्लूइड आपका फ्लो करता जाएगा तो क्या होगा? जहाँ पे फ्रिक्शन लॉस भी होगा. लेट अस से दैट द फ्रिक्शन लॉस और हेड लॉस दिस इज इक्वल टू HF. ये आपका आ गया फ्रिक्शन लॉस. यू अंडरस्टैंड? क्या किया? वी हैव अप्लाइड द बर्नौलीज थ्योरम एट द सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2. आप यहां पे देख लीजिए, एज द कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप. दिस इज द कंडीशन. तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप में जो आपका B1 होगा दिस इज इक्वल टू B2. क्यों? बिकॉज द डायमीटर इज सेम, डायमीटर इज यूनिफॉर्म, सो द वेलोसिटी एट सेक्शन 1 1 दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी एट सेक्शन 2 2 एंड आल्सो Z1 दिस इज इक्वल टू Z2. तो ये चीज़ें आपको ये जो कंडीशन हमने लिया था कि pipe that should be uniform and horizontal, from there we got this thing that B1 is equal to B2 means velocity at any section of the pipe 1 1 2 2, जहाँ कोई और भी सेक्शन आप ले लें 3 3, तो at any section of the pipe the velocity is same and the datum head is same. जहाँ से लेके जहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, जहाँ से लेके जहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, datum head is also same. So it means that this term और J टर्म आपकी कट जाएगी, J टर्म और J टर्म आपकी कट जाएगी. यू अंडरस्टैंड? तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई? P1 rho g माइनस
P2 इज इक्वल टू HF, राइट। जहां आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू P1 माइनस P2, दिस इज इक्वल टू रो G HF। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। जी आप नोट कर लें, जी आपकी इक्वेशन नंबर क्या है? दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। You understand? You note down this equation. बर्नौलीज थ्योरम लगाया तो हमने अपनी इक्वेशन जो है नोट डाउन कर लो। जहां तक क्लियर है जी आप नोट कर लीजिए दिस इक्वेशन P1 माइनस P2 दिस इज इक्वल टू रो G HF। मिटा दीजिए इसको। राइट, सो वी गॉट दिस इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं हम, दैट इज P1 माइनस P2 दिस इज इक्वल टू रो G HF, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। What is HF? HF, this is the head loss. You understand? HF क्या है? Head loss due to friction. तो HF is the, जैसे आपको पहले ही बताया, head loss due to head loss due to friction. You understand? अच्छा, इसमें ये क्या होगा कि इंटेंसिटी जो आपकी प्रेशर की थी, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होगा? ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो दैट इज रिड्यूस्ड, राइट। सो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो will be reduced by the frictional resistance, right? Frictional resistance valve होगा, will be reduced by the frictional resistance, right? So intensity of the pressure that will be reduced due to the frictional resistance. अब देखिए frictional resistance क्या है? What is the frictional resistance? Frictional resistance आपका है frictional resistance per unit वेक्टर। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस किस बराबर है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेक्टर एरिया पर यूनिट वेलोसिटी पर यूनिट वेलोसिटी, राइट, इनटू वेक्टर एरिया। टोटल वेक्टर एरिया कितना होगा? इनटू बी स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? ये आपका है टोटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस
this is equal to the frictional resistance per unit batted area, frictional resistance per unit batted area, per unit batted area, per unit velocity, total batted area into batted area and into V square. You understand? So let us say that frictional resistance per unit batted area per unit velocity, इसको मैं डिनोट करता हूं F डैश से। ये किसके बराबर आ गया? इसको आई एम डिनोटिंग इट स्मॉल F डैश। यू अंडरस्टैंड? अब व्हाट इज योर बैटेड एरिया? बैटेड एरिया क्या होगा पाइप का? अगर सर्कमफ्रेंस पाइप का क्या है? पाई इंटू डी, डी इज द स्मॉल डी इज द डायमीटर, और सर्कमफ्रेंस क्या आएगा? पाई इंटू डी आर 2 पाई आर, यही होता है। तो लेंथ कितनी है? अगर जहां से लेके जहां तक मैंने लिखा है, ये लेंथ कितनी है पाइप की? एल लेंथ है। तो व्हाट इज योर बैटेड एरिया क्या होगा? पाई डी इंटू एल, दिस इज योर बैटेड एरिया, दिस इज क्लियर, इंटू वी स्क्वायर, इंटू वी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस F। ये वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस F, इसको क्योंकि मैं मिटा दूंगा, ये वैल्यू आप नोट करें कि जो आपका टोटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा F, दिस इज इक्वल टू F डैश राइट, F डैश पाई डी एल बी स्क्वायर। सो ये आप नोट कर लीजिए राइट। तो आप इसको मिटा देते हैं। Now the second step हम लेंगे इसमें, forces acting on the fluid between one एंड 2। फोर्स क्या एक्ट करेगी फ्लूइड के ऊपर बिटवीन द सेक्शन 1 एंड 2। अब देखिए P1 इज द प्रेशर, तो एट सेक्शन 1 प्रेशर फोर्स क्या होगी? दिस इज इक्वल टू क्या होगी एट सेक्शन 1, दैट इज इफ आई विल से A1 इज द एरिया ऑफ द पाइप, ए ही ले लीजिए भाई, A1, A2, this is the same, pipe is uniform, so A is the area of pipe। तो प्रेशर फोर्सेस एट सेक्शन 1 ऑन द फ्लूइड क्या होगा? P1 आपका प्रेशर है जहां पे इनटू A। नाउ इट्स डायरेक्शन, इट इज फ्लोइंग लाइक दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आई हैव टेकन दिस डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव। अब देखिए माइनस लगेगा, बिकॉज जहां पे जो आपका प्रेशर होगा इसके ऊपर क्या होगा? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। व्हेन इट विल गो आउट, प्रेशर विल एक्ट लाइक दिस एट सेक्शन 2, सो दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो दिस बिकम्स, ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस P2 इंटू A। और तीसरा आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा राइट। सो लेट अस से दैट अ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, मैंने इसको F1 कर लीजिए। सो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, देखिए जो फ्रिक्शनल आपका रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा आपका? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, अगर फ्लूइड आपका ऐसे फ्लो कर रहा है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका हो जाएगा -F1 and for equilibrium of the forces
सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फ्लूइड बिटवीन सेक्शन 1 1 एंड 2 2, दिस इज इक्वल टू 0। यू अंडरस्टैंड? अब F1 की वैल्यू हमें दिया है, दैट यू पुट ऑन हियर, दैट इज P1 इंटू A माइनस P2 इंटू A माइनस F डैश इंटू F डैश इंटू पाई इंटू D इंटू L इंटू V स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। यू अंडरस्टैंड? अब जहां से आप P1 माइनस P2 कर लीजिए, so therefore P1 माइनस P2 जहां पे A कॉमन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो डायरेक्ट लिख लो आप P1 माइनस P2, दिस इज इक्वल टू, इसको आप इधर ले जाइए, 0 प्लस हो जाएगा ये, F डैश पाई इंटू D इंटू L इंटू V स्क्वायर अपॉन A, राइट? So this is your equation number 2। ये आपकी equation number क्या आई? This is your equation number 2। You understand? Write down here. So this is your equation number 2। इसको आप इस तरीके से, जे पाई इंटू डी क्या कहेगा? व्हाट इज योर पाई इंटू डी? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। पाई इंटू डी, दिस इज अ पेरीमीटर, है ना? पेरीमीटर क्या होगा पाइप का? पेरीमीटर पी के साथ है, उसे सीधा लिख लो, पेरीमीटर पी इज इक्वल टू पाई इंटू डी। तो मैं इसकी जगह पाई इंटू डी की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी लिख सकता हूँ, इधर लिख लीजिए, F डैश P इंटू L इंटू V स्क्वायर अपॉन A। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यू अंडरस्टैंड दिस? So this is your equation number 1 and this is your equation number 2, P1 माइनस P2, J और J। इसका मतलब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, राइट? हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो इसको मिटा दीजिए आप। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। ये क्या था? P1 माइनस P2, रो जी एच, यह आ गया रो जी एच एफ। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, दिस इज इक्वल टू एफ डैश पी एल इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट? तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एच एफ, हमें हेड लॉस निकालना है। तो हेड लॉस क्या आएगा? देयरफॉर एच एफ, दिस इज इक्वल टू एफ डैश रो इंटू जी इंटू पी अपॉन ए इंटू एल इंटू बी स्क्वायर, राइट? अब देखिए P अपॉन के, व्हाट इज योर P अपॉन ए? दैट इज P, तो मैंने आपको बताया था पेरीमीटर बाई डी।
तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, इसको मिटा दीजिए आप। सो देखो यहाँ पे P अपॉन ए की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज P अपॉन ए। P अपॉन ए की जगह क्या लिखेंगे? ये मैं P क्या है, पाई इंटू डी, आई कैन राइट इट। पेरीमीटर, एरिया क्या होगा पाइप का, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, पाई और पाई कैंसल, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन डी। क्या आएगा ये? दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन डी। तो P अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन डी लिख सकते हैं जी हम। P अपॉन ए की जगह आई कैन राइट दिस 4 upon D, yes, I can write this. So therefore, HF is equal to F dash upon rho into G ये क्या आएगा, इंटू 4D ये बी स्क्वायर था, दिस इज बी स्क्वायर इंटू एल इंटू बी स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? ये आ गया। अब देखिए दिस वन एफ डैश अपॉन रो, एफ डैश upon rho, this is equal to f upon 2, where f क्या है, where f is coefficient of friction, where f is coefficient of friction. You understand? सो इसकी जगह आप इसको मिटा देते हो। Therefore, एफ डैश अपॉन रो की जगह हम क्या लिखें, ये लिख दें अगर एफ अपॉन 2 into 4 into L into B square into G into D. You understand? तो आपकी इक्वेशन आ गई है। हेड लॉस, दिस इज इक्वल टू, हेड लॉस क्या आएगा, फ्रिक्शन लॉस और हेड लॉस, HF, this is 4F L B square upon 2 into G into D, and this is your Darcy-Weisbach equation. ये कौन सी इक्वेशन है, Darcy-Weisbach equation. And you have seen one thing here, that in case of turbulent flow, the head loss is same. So this is called the Darcy, ये आपकी आ गई Darcy you understand? तो ये आपका एक्सप्रेशन है HF का 4FL B square upon 2GT. This is the Darcy-Weisbach equation. You understand? जहां तक चीजें क्लियर है?
सो डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन हमने ड्राइव कर दिया, लिख देते हैं यहाँ पे। इक्वेशन HF 4FL B² upon 2GD, right? So what is F here? F क्या है? F is the friction coefficient. F फ्रिक्शन कोफिशिएंट, F की जो वैल्यू है दैट इज 16 अपॉन RE। इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहा हूं। इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट 16 अपॉन RE। जब आपका रेनॉल्ड नंबर जो है रेनॉल्ड लेस देन 2000, यू अंडरस्टैंड। जब आपका रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 होगा तो उस वक्त आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी फॉर विस्कस फ्लो, फॉर विस्कस फ्लो RE लेस देन 2000, तो ये होगा फॉर विस्कस फ्लो मीन्स लैमिनार फ्लो। और F इज इक्वल टू 0.179 RE रेज टू पावर 1/4, 0.179 RE। जब RE आपका वेरी करेगा कहाँ से, फ्रॉम 4000 टू 10⁶, यू अंडरस्टैंड। सो ये दो वैल्यूज़ हैं। रेनॉल्ड नंबर अगर बट 2000 से कम है तो उस वक्त फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका ये होगा, और अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 4000 से 10⁶ या अप टू 10⁵, सो देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन द वैल्यू इज दिस, यू अंडरस्टैंड। जहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसी इक्वेशन से हम डार्सी इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम ड्राइव करेंगे। इसी सेम इक्वेशन से हम डार्सी इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, सॉरी डार्सी नहीं, चेज़ इक्वेशन। तो ये तो क्या हो गया। अब देखिए चेज़ इक्वेशन, सेकंड चेज़ इक्वेशन वी ड्राइव दैट। तो हमारा जो फार्मूला आया था HF का क्या था, अगर पीछे इसको आप देखें तो HF था आपका F' अपॉन रो इंटू G P अपॉन A इंटू L B²। चेक इट, यही था F' रो अपॉन G P अपॉन A इंटू L B², यू अंडरस्टैंड। जहाँ से ही जो अब हमने डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन ड्राइव किया था, तो जहाँ से हमने F' अपॉन रो की जगह हमने क्या लिखा था F/2, और P अपॉन A की जगह हमने पुट किया था इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D, तो हमने वो इक्वेशन ड्राइव की थी। अब इसमें देखिए आप F' अपॉन रो इंटू G। अब देखिए ये आपका जो P अपॉन A है, अगर मैं यू नो द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किसको कहते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये बेसिकली आपकी ओपन चैनल फ्लो में होगा। ये अभी हमने पढ़ा नहीं इसको, बट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दिस इज इक्वल टू M इज इक्वल टू A अपॉन P। दिस इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, M इज इक्वल टू A अपॉन P। तो अगर इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा π/4 इंटू D² पाई इंटू D
तो जे आपका आएगा d/4। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इन केस ऑफ द सर्कुलर पाइप दिस इज इक्वल टू d/4। बट हमें ये दिस वैल्यू वी डोंट वांट टू पुट हियर। आप देखिए m इज इक्वल टू a/p है, तो दिस इज p/a। तो जहां से हम इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे, HF इज इक्वल टू F डैश रो G A/P, दिस इज m हाइड्रोलिक डेप्थ। तो P/A क्या होगा, 1/m ऐसे लिख सकते हैं, इंटू L इंटू बी स्क्वायर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? जहां पे कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ये आपका आ गया HF, फ्रिक्शन हेड लॉस। व्हाट इज FL बी स्क्वायर F डैश L बी स्क्वायर रो GM। तो HF अगर इससे निकालें, दिस इज इक्वल टू F डैश L बी स्क्वायर रो GM, राइट, वेयर M इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हेड लॉस अगर हमें चेजिस इक्वेशन से फाइंड आउट करना, तो ये भी इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये भी फार्मूला है आपका, जहां से आ गया हमें। यू अंडरस्टैंड दिस? बट मोस्टली चेजिस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, ये वेलोसिटी की वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो जहां से हम वेलोसिटी की वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो, उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे जहां से चेजिस इक्वेशन। सो दैट इज यूज्ड फॉर दिस। तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को हम चेजिस इक्वेशन कहेंगे। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए, देयरफॉर वेलोसिटी, आप देखो जहां से कर लीजिए, अब वेलोसिटी स्क्वायर, ये वाला इधर वाला पार्ट, वेलोसिटी स्क्वायर क्या होगा, HF इंटू रो इंटू G इंटू M F डैश इंटू L, राइट, F डैश इंटू L। जहाँ इसको हम अगर ऐसे लिखें, ऐसे करके लिख लें, रो G अपॉन F डैश, रो G अपॉन F डैश इंटू M HF अपॉन L। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V स्क्वायर को? यस, वी कैन राइट इट, रो G F डैश M HF अपॉन L। सो व्हाट इज योर वेलोसिटी? इसको मिटा दीजिए आप, दिस इज HF। ये आप इक्वेशन को नोट कर लें। So therefore the velocity or the average velocity, you can say B की क्या वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो G F डैश इंटू M you understand, or under root of rho G F dash into under root of M into HF upon L। you understand? अब ये जो आपका जे वाला रो G HF F डैश, दिस इज हम चेजिस कांस्टेंट ले लेंगे, ये C। इस टर्म्स को हम किसके साथ डिनोट करेंगे, रो G F डैश अंडर रूट ऑफ दिस C एंड दिस वन
HF upon I. This is a slope at last divided by length. This is a slope. So you can say that ये जो आपका होगा इसको हम I के साथ भी डिनोट करेंगे। तो हमारी जो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी, जो हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आएगा, C अंडर रूट ऑफ m into I. You understand? C into अंडर रूट ऑफ m into I. तो ये जो आपकी इक्वेशन है वेलोसिटी की इक्वेशन, दैट वी हैव ड्राइव्ड बाय यूजिंग हेड लॉस का जो रिलेशन था उसको। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द चेजिस इक्वेशन। समझ आया चेजिस इक्वेशन क्या है? दिस इज द चेजिस इक्वेशन। तो इसमें C क्या है, सेपरेट लिख लो आप। तो C की वैल्यू क्या है, C इज द कांस्टेंट हियर, तो तभी इसको मैंने बाहर लिख लिया। तो C आपका आ गया, जो C होगा, C इज अंडर रूट ऑफ रो जी एफ डैश, राइट। ये आपकी आ गई C की वैल्यू, रो जी एफ डैश, रो डेंसिटी, G इज द ग्रेविटी and F dash frictional resistance. You understand? And I क्या है, what is your I? This is under root of HF upon L, right? So these are the equations. हमने आज डार्सी-विस्बैक इक्वेशन एंड चेजिस इक्वेशन इनको हमने ड्राइव कर लिया। यू अंडरस्टैंड? सो यू अंडरस्टैंड है। तो m की क्या वैल्यू होती है यहाँ पे, जे आपकी m क्या है इसमें, हाइड्रोलिक, जे भी लिख लो आप। m क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, तो मैंने ये निकाला था m इज इक्वल टू d/4। m इज इक्वल टू d/4। तो m की जगह हम डायमीटर ऑफ द पाइप दिया होगा, तो d/4 दिस इज इक्वल टू m। सो दीज टू इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेपरेटली वी हैव drive these equations, Chassis equation as well as the Darcy-Weisbach equation, right? So this is the end of this lecture. जो next lecture इसमें है उसमें हम कुछ P/Q करेंगे और कुछ हम conventional numericals करेंगे to understand the complete basically your this concluding वो होगा, उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि वो सारा टॉपिक जो हमने आज तक किया है उसमें जो आपके खासकर कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि P/Q तो क्या है, वो तो कंसेप्ट हैं आपके जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हैं। और अगर आप ये जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हैं आपके टर्बुलेंट फ्लो के, इनको अगर आप अच्छे तरीके से पूरे फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड जितने लेक्चर मैंने दिए उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, सारा स्टडी मटीरियल जो यहाँ पे दिया मैंने उसको आप नोट करते हैं, लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो वहाँ से आपको सारे P/Q के कंसेप्ट जो हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन अच्छे तरीके से किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए कन्वेंशनल जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उसी से आप कह सकते हैं कि वो आपकी प्योर एप्लीकेशंस होंगी पर्टिकुलर दैट टॉपिक की। जिस टॉपिक के ऊपर हमने जब लेक्चर दिए हैं, जैसे हमने टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द पाइप, तो उसमें जब आप मेन कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यू अंडरस्टैंड? तो वो एप्लीकेशंस हैं और कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स जो हैं उनके ऊपर भी अगर आपको टॉपिक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो जितने न्यूमेरिकल्स आपको मिले वो आपको न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। यू अंडरस्टैंड? कि बिकॉज P/Q और MCQ
सो दे आर द सिंपली कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक्स। अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे तरीके से किया है तो उसी में से आपके सारे कंसेप्ट निकल जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल से आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसकी हम एप्लीकेशंस प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। यू अंडरस्टैंड? सो थैंक यू वेरी मच।